Hi, good morning, all of you. This is Prachi. I'm here to do a quick general reading for all of you today. We're going to look at the fire signs, the air signs, the water signs, and the earth signs. We're going to pull out cards that are most important for you today. This is just a tarot reading for the day, a message for the day, a quick message for all the signs. This is general, may or may not resonate. If you do like the video, do not forget to like, comment, subscribe, share. Thank you so much. I have already posted a lot of specific detailed readings, love readings in Hindi, in English. I've done that for the signs over the last 1.5 weeks. Please check out your videos. This is applicable to all of these readings are applicable to Sun, Moon, Venus, and Rising signs, so you can watch accordingly. What else? If you'd like to book a personal reading, details are in the description box. I'm also on Instagram. I post regular messages. You can follow me on Instagram too. Thank you. Let's get started for the day today. We're going to start with the fire signs Aries, Leo, and Sagittarius. This is a message for the day today for the signs of Aries, Leo, and Sagittarius, Sun, Moon, Venus, and Rising. Let's see what do we have for you today. What do we have for the signs of Aries, Leo, Sagittarius today? Most important message today. Okay, I'm feeling like you're in this energy of that what has happened in the past has happened. We cannot go back, we cannot correct that, even though we put in all our heart, all our emotions, all our time, consciousness, everything. सब कुछ ट्राई किया, जो भी हम कर सकते थे अपनी विल पावर में हमने सब कुछ ट्राई किया, बट वो वर्कआउट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, जो हो गया, अब उसको पास में छोड़ते हैं, लेट अस मूव ऑन, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं, एक नए तरीके से शुरुआत करते हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम एबल टू सी फॉर यू हियर. मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि आप एक बहुत ही you want to think like a leader now. You want to take responsibility. You want to take certain decisions that are very practical for you. आई थिंक इन द पास्ट यू माइट हैव टेकन सम डिसीजंस. कुछ डिसीजंस आपने पास में ऐसे लिए हैं जहाँ पर आप इमोशनली सोच रहे थे, और मे बी वो सिचुएशंस आपके लिए वैसे वर्कआउट नहीं करी जैसे आप चाहते थे कि वो वर्कआउट करें. तो अब एक नए शुरुआत के साथ, एक नए अप्रोच के साथ, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप अब एक डिसीजन ले रहे हैं. आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं. काफ़ी कोलैबोरेटिव माइंडसेट है इस समय आपका. आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं. वर्क प्लेस पे आई फील योर फीलिंग कि एक नए अप्रोच के साथ आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक इमोशनली एक रिलेशनशिप में किसी तरीके का वर्कआउट हुआ हो, या तो आपने पास्ट को अपने ही रिलेशनशिप में पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करी हो, या फिर किसी और को पीछे छोड़कर आप एक नए इंसान की तरफ बढ़ रहे हैं. आप सोच रहे हैं कि यार ये मेरे लिए ठीक है बिकॉज ये प्रैक्टिकल है, तो आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दिस. This is what I'm getting for some of you, but mostly I'm seeing a lot of collaborative energy, a lot of energy like I just don't want to function from my emotions. I don't want to think only emotionally. Practical hona hai, logical hona hai, नए approach की तरफ बढ़ना है. It's not like you want to be, ऐसा नहीं है कि सोचना है तो सिर्फ दिमाग से, मतलब दिल है ही नहीं, नहीं, not like that. But you don't want to be an emotional fool. आप एक emotional fool नहीं बनना चाहते, ठीक है. I do feel it's gonna be a good day at work for many of you. You might get some good opportunity, some new thing that could start off for you. But I'm seeing a lot of freshness in your energy, Aries, Leo, and Sagittarius. A lot of freshness. This stance की अब आगे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक लीडर की तरह जो चीज़ें वर्क नहीं करती उनको पीछे रखते हुए, अपने लेसन्स को याद रखते हुए, एक नए अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं. काम में, हर तरीके से लाइफ में आप प्रैक्टिकली आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिकली आप आगे चीज़ों को देखना चाहते हैं. That's what I'm getting for you, Aries, Leo, and Sagittarius. Now let us move on to the air signs, which is Libra, Gemini, and Aquarius. Let's see what's the most important message for you guys today. Libra, Gemini, Aquarius, Sun, Moon, Venus, and Rising. Most important message today. Let's see. Wow.
ओके, आप लोग किसी तरीके की स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश करें। कुछ है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, जो थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, और ये वैसा वाला डिफिकल्ट नहीं है जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे करना ही नहीं है, मुझे इसको अटेम्प्ट ही नहीं करना क्योंकि तो बहुत मुश्किल है यार, कौन अपना दिमाग लगाएगा। नहीं, इट्स लाइक इट इज़ समथिंग जहाँ पर आप बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कुछ लोगों के लिए एक रिलेशनशिप भी हो सकता है। मुझे लगता है कोई कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप कॉन्फिडेंटली आगे तो बढ़ना चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक फ्यूचर चाहते हैं, एक हैप्पी हैप्पी लाइफ चाहते हैं इस पर्सन के साथ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज रही हैं, जिसकी वजह से अभी इस रिलेशनशिप में अब भी कुछ डिफ़िकल्टीज है, पास्ट वूंड्स हैं जो इस सिचुएशन को थोड़ा डिफ़िकल्ट बना रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू लव, इट जस्ट कैन बी रिलेटेड टू अ सिग्निफिकेंट चॉइस दैट यू हैव टू मेक। ओके, या तो कोई है जो आप कहीं आप प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, या फिर आप किसी तरीके का डिसीजन लेना चाहते हैं जिस डिसीजन का असर आपकी स्टेबिलिटी पे पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट चॉइस करनी है आपको, ऐसा मुझे दिख रहा है, और ये चॉइस ईजी नहीं है। इस चॉइस में आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपने आप में ऑनेस्ट होकर, अपने आप में बिलीफ रखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बट आप सोच रहे हैं कि मैं अट्रैक्टेड तो हूँ, मुझे ये पर्सन पसंद भी है, बट क्या जिस तरीके से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लाइफ में, या चाहती हूँ लाइफ में कमिटमेंट की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ, क्या ये पर्सन भी मेरे साथ वैसे आगे बढ़ पाएंगे? दैट इज़ अ चॉइस। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ चॉइस, दैट the main theme of the day for you that I'm getting is a choice that is to be made. ये एक सिचुएशन भी हो सकती है, वर्क प्लेस हो सकता है जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपको कोई सक्सेस मिले, उसके लिए आपको एक डिसीजन लेना है। मे बी किसी ऐसे इंसान से डील करना है जो बहुत ज़्यादा कैरिज्मेटिक है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अपने आप में दे आर वेरी बोल्ड, दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव, और उनसे बात करने के लिए, ये डिसीजन लेने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए। बट ओवरऑल जो थीम मुझे दिख रही है आपके लिए कि एक इंपॉर्टेंट चॉइस आपको लेनी है, और इस चॉइस का सीधा असर है आपके लाइफ की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग पे। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू एयर साइंस। देखते हैं वाटर साइंस के लिए क्या है। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसीज। Scorpio, Cancer, Pisces, what do we have for you today? Sun, Moon, Venus and Rising. Message for the day for Scorpio, Pisces and Cancer. Okay, this is for Scorpio, Pisces and Cancer. मुझे लग रहा है आप लोगों की ना कोई विश पूरी हुई है, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसीज। इट फील्स लाइक कि कुछ तो था जो आप चाहते थे, वो पूरा तो हो गया है, बट आपको उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा। आपको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कोई पर्सन है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं कि ये पर्सन मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, वास्तव में जो अपना प्रपोजल मेरे सामने रख रहे हैं उसमें बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर समय आप ये सोचते रहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जैसा पहले था वैसा क्यों नहीं हो सकता। पहले पहले की चीज़ें आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। रिलेशनशिप में बीच में मे बी कोई ब्रेक आया हो या कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लव नहीं, कोई भी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें प्रॉब्लम्स आई हो, तो आप इस रिलेशनशिप की पास्ट एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप वर्क में, अपने काम में, अपनी चीज़ों में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं। कुछ है जो आप करके दिखाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को प्रूव करना चाहते हैं, या सिर्फ यू वांट टू सक्सीड, आप चाहते हैं कि आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आपको इसके बारे में थोड़ा ऑफ लगता है। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस अपॉर्चुनिटी में कि मैं कर लूँगा, नहीं कर लूँगा, कर लूँगी, नहीं कर लूँगी, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पास्ट एनर्जीज के बारे में, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोगों के लिए पास से कोई पर्सन आपसे मिलना चाहते हो सकते हैं, आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट जो भी ये सिचुएशन है, मुझे सिचुएशन में ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। मुझे इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ तो इस सिचुएशन में है जो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, या फिर मुझे अभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली हो रहे हैं, चाहे ये वर्क रिलेटेड है या फिर लव रिलेटेड है।
That's what I have for you, water signs. Quickly moving on to the earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Taurus, Virgo, Capricorn, most important message for you today. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Venus, Rising, most important message that I have for you today. Taurus, Virgo, Capricorn. Last shuffle. Oh dear. काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट इमोशंस के साथ आप डील कर रहे हैं, मुझे लगता है. Lack of emotional stability, lack of emotional offering, financial stability, financially, emotionally बहुत ज़्यादा drained, sad, depressed, बहुत ज़्यादा negative, low, heavy feelings हैं आपको. हो सकता है पास में आपको लगा हो या आपको अभी भी लगता हो कि आप बहुत अकेले हैं, कोई नहीं है आपका साथ देने वाला. आप सबके लिए बहुत कुछ करते हैं बट आपके लिए कोई कुछ नहीं करता. बहुत ज़्यादा हेवी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं. You're trying to manifest something, you're trying to change the situation, you want an equal give and take in the situation. आप चाहते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों में कंट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही आप में भी लोग कंट्रीब्यूट करें. एंड वाइल आप बहुत लो फेज में हो सकते हैं, आप आज थोड़ा लो फील कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप रेडी हैं. कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपको थोड़ा सरेंडर करने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है और आप वो करने के लिए भी रेडी हैं. बट समवेयर आई फील यू विल बी डीलिंग विद इमोशंस दैट आर रियली हैवी. मुझे लगता है एक फीलिंग ऑफ लैक कहीं फील हो सकता है कि फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, कम हैं, कमी होना, बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी चीज़ों की. इमोशनली बहुत कमी महसूस होगी, अकेलापन महसूस होगा, बहुत हैवी फीलिंग होगा, लोनली फीलिंग होगा. ऐसा मुझे एनर्जी थोड़ा दिख रहा है in your day to day. But at the same time, all is not lost. You are manifesting, you are hopeful, and this card is also a card that is telling you that you have everything. आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए to change the situation. It's just that you have to believe. It's just that you have to believe, you have to trust and you have to flow. जैसे चीज़ें चल रही हैं वक्त के साथ आगे बढ़े, क्या कदम आप ले सकते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए. इट्स नॉट फार अवे. वो डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है बट आपकी विल पावर में डेफिनेटली है, आप इससे बाहर निकल सकते हैं. That's what I have for you today, Taurus, Virgo, Capricorn. Thank you so much for tuning in. If you do like the video, don't forget to like, share, subscribe, comment. Thank you so much. Have a good day, all of you. Bye-bye.